You're live, ma'am. Okay, thank you. Good morning. We're starting with the Unit 2 of our Industrial Laws, which is on the Employees State Insurance Act 1948. So what does the ESI, from now on, I'll refer to it as the ESI Act, that is the Employees State Insurance Act. The objective of this act is to provide an integrated social security and protection to the workers and their dependents in the organized sector in contingencies such as sickness, maternity, and death, or the disablement due to an employee injury or occupational hazard. So this is another act which is for the welfare of the workers and their family members, but only in the organized sector because it is related to contributions, systems, and everything. So it is providing social security for the welfare. It is for the protection of the workers. If anything happens to them in case of any sickness, maternity leaves, or disablement or death, which can happen ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कोई एक्सीडेंट की वजह से या कोई इंजरी हो जाती है तो so this act provides protection to them. Employees covered under this act are entitled to medical facilities for themselves and the dependents. जैसे हमने कहा वर्कर को प्रोटेक्शन मिली उसके फैमिली मेंबर जो भी डिपेंडिंग मेंबर्स. Cash benefits for the specified contingencies result in the loss of wages or earning capacity. इसमें उनको कैश बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि किसी भी कंटिजेंसी, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कोई भी एक्सीडेंट हुआ था या जिसकी वजह से उनकी वेजेस वर लॉस्ट और उनकी अर्निंग कैपेसिटी, मान लीजिए वो पहले ओवर टाइम कर पाते थे, अब किसी इंजरी की वजह से नहीं कर पाते हैं, या पहले 8 आवर्स काम कर पाते थे तो अब 6 आवर्स काम कर पाते हैं, सो द अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस्ड. और मैटरनिटी बेनिफिट फॉर इंश्योर्ड वुमेन, द फीमेल एम्प्लॉयज जिनका इंश्योरेंस है उनको मैटरनिटी बेनिफिट भी देते हैं. एंड फैमिली पेंशन फॉर द डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉई ड्यू टू एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी. फैक्ट्री में काम करते हुए या ऑफिस में काम करते हुए किसी रीजन की वजह से, अगर काम की वजह से somebody dies, so उनके लिए under this ESI Act, the pension is provided to the family members, to the dependent members of the insured employee or the worker. Sorry, okay. So the applicability of the Act, it applies to the entire Indian territory. It applies to all the factories other than seasonal factories. अगर ऐसी कुछ factories होती हैं जो सिर्फ सीजनली ही ऑपरेट करती हैं, मतलब हो सकता है कि विंटर सीजन से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए हो या फेस्टिव सीजन से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए हो, अदरवाइज दे आर शट, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है. तो अब बाकी जो अनसीजनल नॉन सीजनल फैक्ट्रीज हो गई, बाकी उनके लिए डिटेल में वी नो दैट ऑल फैक्ट्रीज रन विद पावर एंड एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन्स. इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो अपने प्रोसेसेस में एंड एटलीस्ट 10 पीपल आर एम्प्लॉयड. एंड या फिर इफ दे आर नॉट रनिंग विद पावर, दे आर रनिंग विदाउट पावर एंड एम्प्लॉइंग 20 और मोर पीपल, तो उन पे भी एप्लीकेबल होता है. द नेक्स्ट इज दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आफ्टर नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट extend the provisions of the Act to any other establishment, industrial, commercial, agricultural or otherwise. So यहाँ पे भी appropriate government, जैसे EPF Act में होती थी एक appropriate government, वो usually central government है, कुछ cases में state government है, वो notify करते हैं government के official gazette में that yes, on all of these establishments this particular act will apply. तो ऊपर नॉन सीजनल फैक्ट्रीज के अलावा अगर किसी और कंपनी पे, किसी और फैक्ट्री पे उनको अप्लाई करना है या तो वो कर सकते हैं. ये एक इंडस्ट्रियल हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल और एनी अदर विच द गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइंग. Then, state governments have extended them to certain class of establishments such as shops, hotels, restaurants, cinema, theatre, motor transport undertaking, newspaper establishment, employing 20 or more people. So what they have done is state governments को भी पार दिया है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं ये एक्ट ऊपर के नॉन सीजनल फैक्ट्रीज के अलावा इन सब एरियाज में. तो कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने शॉप्स पे, होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे एंड ऑल ऑफ दीज, बट प्रोवाइडेड दे हैव एम्प्लॉयड एटलीस्ट 20 पीपल, तब उनके ऊपर ESI एक्ट अप्लाई कर सकते हैं. A factory or establishment to which this act applies
will continue to apply even if the number of employees therein at any point fall below the specified limit or the manufacturing process ceases to be carried on with the aid of power. किसी भी फैक्ट्री में हो सकता है, मान लीजिए 10 ही एम्प्लॉयज़ हैं नॉन सीजनल फैक्ट्री में, एंड किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे somebody quit, तो 9 रह गए, या फिर 2 को ले ऑफ कर दिया है, whatever happened, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ceases to be carried on with the aid of power. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रोक दिया गया कुछ टाइम के लिए, शायद किसी रीजन से, तो अब उस केस में ऐसा नहीं है कि उन जितने दिन इट विल टेक टू फिक्स दैट, it is not like this act will stop applying. No, it will continue to apply throughout, uh, even if सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम. मैम ये yes, आपका कैमरा नहीं चल रहा मैम. yes sir, ये मेरा administrator is showing that sorry, video sharing is disabled by the administrator. नहीं, वीडियो तो आपकी शेयर हो रही है मैम, कैमरा ऑन नहीं है मैम. सर नहीं, कैमरा आई एम टेलिंग यू ना, मैं लैपटॉप में कैमरा ऑन किया, वो ऑन शो दिखा रहा है, लेकिन मेरा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जो कैमरा वाला आइकन होता है वो डिसेबल्ड आ रहा है, उसको मैं ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ. मैम ये चेक करवाना पड़ेगा ना, विदाउट कैमरा तो फिर क्लासेस में कितनी कंटिन्यू. आई थिंक लास्ट क्लास में भी यही चैलेंज था मैम. नो सर, मेरी लास्ट क्लास में तो चल रहा था कैमरा. ओके मैम, प्लीज मैम इसको सॉर्ट आउट करवा लेना मैम. सर आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, यू कैन सी दिस इज शोइंग दिस. हाँ, इसको ना एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो आपको हो जाएगा, चैलेंज खत्म हो जाएगा. ठीक है, अभी आप क्लास ले लीजिए मैम, नेक्स्ट टाइम सी द कैमरा इज वर्किंग. यस मैम, बट दिस इज शोइंग. ओके फाइन मैम. अब नेक्स्ट टाइम ना एक बार रीस्टार्ट करके एक बार लॉग इन अगेन करेंगे तब चैलेंज नहीं है. ओके ओके, थैंक यू मैम. ठीक है सर, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी. Okay, so we were talking about the applicability of the act. So as we were discussing the last point, at any point of time the number of employees fall below the threshold limit or manufacturing process stops for some time. तो ऐसा नहीं है कि एक्ट उस टाइम के लिए, उस कुछ वीक्स के लिए अगर कुछ बंद हो गया था तो अप्लाई नहीं करेंगे, इट विल कंटिन्यू टू अप्लाई. ओके, next is exemptions. The appropriate government by notification in the official gazette can also give exemptions. जैसे official gazette में notify करके special applicability कर सकते हैं, वैसे ही special exempt भी कर सकते हैं. Any factory or establishment for a period up to 1 year or renew such exemption for periods up to 1 year. किसी भी factory या establishment के ऊपर वो एग्जेम्पशन दे सकते हैं फॉर अप टू 1 ईयर. किसी भी पीरियड के लिए दे सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दे सकते. गवर्नमेंट देगी कि दैट येस यू डू नॉट नीड टू कंप्लाई विद द ESI एक्ट फॉर इतने पीरियड के लिए. या फिर अगर ऑलरेडी किसी को एग्जेम्पशन मिली हुई है, किसी फैक्ट्री को या किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को, तो वो उसको रिन्यू कर सकते हैं. रिन्यू सच एग्जेम्पशन, वो जो रिन्यूअल होगा वो भी वो मैक्सिमम 1 साल के लिए कर सकते हैं. किस केस में कर सकते हैं? Only if the employees are receiving benefits superior or similar to the ESI benefits. So what we are saying is, उनके कंपनी में, उनकी फैक्ट्री में ये एक्ट सिर्फ तभी अप्लाई नहीं होगा अगर गवर्नमेंट तभी अलाउ करेगी उनके एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी कंपनी की तरफ से या फिर एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से दे हैव ऑलरेडी देयर सम इंश्योरेंस स्कीम, स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जिसके बेनिफिट्स आर आइदर इक्वल टू द ESI एक्ट और सुपीरियर टू दैट, मतलब उससे ज़्यादा बेटर है, तभी गवर्नमेंट एग्जेम्पशन अलाउ करेगी. द सेकेंड पॉइंट इज एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट टू विच द एक्ट अप्लाइज. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केसेस, कोई भी क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए या कोई भी कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के लिए भी गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है एग्जेम्पशन करना कि इस फैक्ट्री में इन वर्कर्स के ऊपर या इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर द एक्ट विल नॉट अप्लाई. Any factory or establishment belonging to the government or local authority, if their employees are receiving benefits superior or similar to the ESI benefits, again the government can grant exemption if the factory belongs to the government or local, मतलब किसी म्यूनिसिपैलिटी या लोकल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो उनके ऊपर भी अगर ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को सिमिलर ESI बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसी और स्कीम के अंडर,
तो गवर्नमेंट फिर कहेगी ठीक है आपके ऊपर सेपरेटली अब ESI एक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ओके, ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. कहाँ ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑफ हमने बोला नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पे होता है, सीजनल फैक्ट्रीज पे नहीं होता है. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट्स whose employees are receiving benefits superior or similar to ESI benefits. जैसे हमने exemptions में बात की कि अगर employees को किसी भी similar scheme के अंडर ESI के इक्वल या उससे बेटर बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उनके ऊपर दोबारा से ESI अप्लाई नहीं होगा. सो सेकंड पॉइंट इज दैट एनी मेंबर ऑफ द इंडियन मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स, अगर डिफेंस फोर्सेस में कोई है तो उनके एम्प्लॉइज पे अप्लाई नहीं होता है, या मिलिट्री हो, एयरफोर्स या नेवी हो. Any employee whose wages exceed the wages prescribed by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट किया है कि बेसिक वेज पर मंथ का 7500 जिनका है उनके ऊपर ESI एक्ट अप्लाई करेंगे. जिनकी बेसिक वेजेस उससे ज़्यादा है उनके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे. फैक्ट्रीज रन विद पावर एंड एम्प्लॉय लेस दैन 10 persons. तो जो हमने पहले बोला था कि रनिंग विद पावर में 10 एटलीस्ट 10 लोग होने चाहिए. 10 और मोर था ना यहाँ पे, ये सेकंड पॉइंट में एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन्स. सो नाउ वी आर सेइंग अगर उससे कम है तो अप्लाई नहीं होगा. सिमिलरली जो रनिंग विदाउट पावर है एंड एम्प्लॉइंग लेस दैन 20 persons, लेस दैन 20 है एंड रनिंग विदाउट पावर है, then also the ESI Act will not apply. It also does not apply to the mines which are subjected to the Mines Act 1952. Mines पे भी अप्लाई नहीं होता है, उनके ऊपर माइंस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं सर. एंड रेलवे रनिंग शेड्स, उनके ऊपर भी द ESI एक्ट, मतलब उनके एम्प्लॉइज के ऊपर भी द ESI एक्ट डज नॉट अप्लाई. ओके, नाउ एनी डाउट एप्लीकेबिलिटी में, मीनिंग में? The name of the this thing is Elements of Industrial Law. As you can see, मेरा something happened with the system. मेरा camera चल नहीं रहा है. Sorry, I cannot do that. What exactly is the meaning of seasonal or non-seasonal factories? Seasonal factories and non-seasonal factories हम यही बोल रहे हैं कि कुछ फैक्ट्रीज जो हैं, कुछ बिजनेसेस जो हैं, सीजनल बिजनेसेस होते हैं. जैसे आपने सीजनल एग्रीकल्चर भी पढ़ा होगा, सीजनल फैक्ट्रीज भी ऐसी होती है कि दे विल ओनली ऑपरेट फॉर सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि दे मेक विंटर्स का, दे मेक विंटर्स एक्सेसरीज, ठीक है, दे मेक हैट्स और समथिंग वुलन. ओके, they think they do not need to operate the whole year in India because North India में winters होते हैं 2 to 3 months. Okay, so they decided ये तो seasonal, हम बाकी टाइम ये वाला फैक्ट्री को बंद रखेंगे, तो वो भी seasonal फैक्ट्री हो गया. नॉन सीजनल फैक्ट्रीज जो नॉर्मल चल रहे हैं आपकी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कोई भी पार्ट्स की असेंबली, या इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. सो दैट इज नॉन सीजनल फैक्ट्री. ओके, okay, that's it. राइटर का नाम we'll discuss this in the end of the class. आप मुझसे हर क्लास में बार बार पूछते हैं. Now definitions. The central government, sorry, the appropriate government हमने EPF Act में भी पढ़ा था कौन होती है. Mainly it is the central government in relation to an establishment under the control of the central government or railway or a port, mine, oil field, and the state government in relation to any other establishment. क्या बोल रहे हैं कि किसी भी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनके केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर वो एक रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हो सकती, वो एक रेलवे की कंपनी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, या फिर वो एक पोर्ट हो सकता है, एक ऑयल फील्ड हो सकता है, एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट बाकी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही.
Now contribution ESI में भी आता है. So what is the contribution in this case? The sum of money payable to the ESI corporation by the principal employer for any employee and provides any amount payable by or on behalf of the employee in accordance with the provisions of the act. What are we saying? Employees contribute कर रहे हैं अपने ESI के लिए payable to the ESI corporation by the employer. Employer के through जाएगा ESI corporation. It's not like employee has to go and deposit. नहीं, वो employer के through ही जाएगा and includes any amount payable by the employee or on behalf of the employee as per the provisions of the act. Okay, वो हम देखेंगे आगे what is what. Now dependents कौन है? हमने बोला ना that insurance है, social welfare benefits हैं for the employee and their dependents. Now that specifies कि dependents कौन है. Any of the following relatives of a deceased insured person are dependents. Now let's see who all of them are. A widow, legitimate or adopted son who has not attained the age of 25. The son of a deceased employee who is either a widow, he's a legitimate son or he's adopted, लेकिन उनकी एज 25 तक है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं की है, तो वो डिपेंडेंट्स में इंक्लूड होंगे. ठीक है. सेकेंड इज एन The second part is an unmarried, legitimate or adopted daughter, या फिर उनकी बेटी है who is not married yet, तो उसके केस में एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. And or a widowed mother of the deceased employee. Okay. The second is if wholly dependent on the earnings of the insured deceased person. अगर वो completely dependent हैं आपका जो employee था उनके salary के ऊपर ही, तो इस केस में एक legitimate or adopted son or daughter who has attained the age of 25 and who is affirmed, मतलब कि उनको कोई ना कोई medical problems हैं and they are either their own son or daughter या फिर वो adopted भी है और वो 25 years के भी हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो wholly dependent है उनके ऊपर, इसीलिए they will be included in the dependents even if they are the age of 25 or above. तीसरा पॉइंट है wholly और partly dependent on the earnings. अब partly भी हो सकता है, wholly भी हो सकता है. इसमें कौन कौन आएंगे? Parent other than a widowed mother, मतलब कि father भी हो सकता है. Minor illegitimate son, unmarried illegitimate daughter, married daughter and minor or widowed son. ये दोनों है, son और daughter. ठीक है. Then the third is a minor brother or sister or an unmarried sister. ये छोटी भाई बहन जो माइनर हैं अभी भी, मतलब 18 years की नहीं हुआ, that is minor, below 18, and they are unmarried, or an unmarried sister. Widowed daughter-in-law or minor child of a deceased son or daughter. उनके बच्चों का their child who is still a minor, again less than 18, or lastly a paternal grandparent. No parent of the insured employee is alive, मतलब कि उनके अपने grandparents भी included हैं if their own parents have already passed away. So all of these people, they are the family or the dependents of the insured deceased employee for the purpose of ESI Act. In case इस केस में उनकी डेथ के बाद उनको पेंशन या ESI बेनिफिट्स के अंडर है वो मिलेगी. एम्प्लॉयमेंट इंजरी. नाउ वी सेड, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड हो जाए, उससे अर्निंग कम हो रही है या जॉब कर नहीं पा रहे हैं, तो अब उसकी भी डेफिनेशन बताई गई है. व्हाट इज एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी? इट इज अ पर्सनल इंजरी caused by an accident or occupational disease due to the employment. फैक्ट्री में काम करते हुए या एस्टैब्लिशमेंट में काम करने के टाइम only during those hours an accident happened, or because of that work you have caught some disease, so that's a personal injury. Being an insurable employment, provided आपका terms में insurance already था, whether the accident occur or the disease occurs within or outside the Indian territory. वो आपके काम से रिलेटेड होनी चाहिए, वो जो प्रॉब्लम आई है वो काम की वजह से होनी चाहिए, बेशक वो इंडिया में थे आप या बिजनेस ट्रिप पे बाहर थे, it will not matter, but it has to be personal injury by the accident or disease due to the employment. That is very important. तो इसमें essentials क्या है, इसमें उन्होंने कैटेगराइजेशन बताई है. एक पर्सनल इंजरी होनी चाहिए, वो फिजिकली हो सकती है, मेंटली, साइकोलॉजिकली, और इंजरी बाय मेंटल शॉक that affects the capacity of the workman.
उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से वो एक फिजिकल इंजरी हो सकती है, मेंटल इंजरी हो सकती है, साइकोलॉजिकल इंजरी भी हो सकती है. The injury must be caused by an accident or an occupational disease. During the employment होना चाहिए. कोई एक्सीडेंट हो गया था फैक्ट्री में, या फिर कोई चीज़ों की वजह से you have caught some allergies or you have caught some disease. The injury must arise out of and in the course of employment. Working hours में आपका काम करते हुए ही it happened. The employment must be insurable. Insurance होना चाहिए employee का already. Medical insurance की बात करें, ठीक है. The next is employee. अब employee की definition क्या है? Employee is any person employed for the wages in or in connection with the work of a factory or establishment to which the act applies. मतलब कि जितनी factories और establishment के ऊपर ये act आ रहा है, उसमें जितने wages वाले employees हैं, उन सबके ऊपर act will apply. अब कौन-कौन आता है इसमें? Directly employed by the principal employer on any work of the factory or establishment. फैक्ट्री के किसी भी काम से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ सेल्स, उसमें डायरेक्टली आपको आपके एम्प्लॉयर ने रखा हुआ है फैक्ट्री किसी भी काम के लिए, तब आप एम्प्लॉई हो. एम्प्लॉयड बाय और थ्रू एन इमीडिएट एम्प्लॉयर ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एजेंट. एक सेकेंड पर्सन है या एक एजेंट के थ्रू या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जा रहे हैं, तो लेकिन सुपरविजन में आप मेन ओनर, जो मेन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसके अंडर हो आप, लेकिन आए उनके थ्रू एम्प्लॉय हो, ठीक है. एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर की तरह मान लीजिए. सो इस केस एंड ऑन एनी वर्क वंस अगेन, सो इस केस में यू आर ऑल्सो एन एम्प्लॉय. सर्विसेज आर टेम्परली लेंट और ऑन हायर टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेम्पररी बेसिस पे भी हो सकता है, एंड ऑल्सो विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट और इट्स ब्रांच और डिपार्टमेंट. वो आप फैक्ट्री, मैंने कहा था ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, उसकी ब्रांच में हो सकते हैं आप, उसके किसी और डिपार्टमेंट, रिलेटेड डिपार्टमेंट में हो सकता है. और विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, किसी भी पर्पज के लिए जो रॉ मटेरियल्स खरीदे जा रहे हैं या प्रोडक्ट्स, द फाइनल प्रोडक्ट्स, और वट एवर द असेंबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इज बीइंग डन, इफ यू आर डूइंग दैट, then also you are an employee. And apprentices whose training period is extended to any length of time. Apprentices रखे जाते हैं. Apprentices Act 1961 जो है, उसके प्रोविजन सेपरेट हैं. तो अगर आप उस एक्ट के अंडर हो, तब आपके ऊपर ESI अप्लाई नहीं होगा, तब यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, तब आप अप्रेंटिस हो. लेकिन अप्रेंटिसेस एक्ट के अंदर जो लेंथ ऑफ ट्रेनिंग पीरियड बताया गया है, उससे ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हो, training period is extended to any length of time, then you will be an employee, then you will not be under the apprentice act, then you will be under the ESI act. तो length of time पे depend करता है आपका training period कितने time का था. अगर वो extended है apprentices act से ज़्यादा, then you will be an employee. Exempted employee कौन है? Who is not liable under the act to pay the employees contribution. जो हमने exempted establishments की बात कर दी, या जो हमने employees की बात कर दी, उनके अलावा जो लोग हैं, they are not liable to pay anything under the act, pay anything as in contribution में, तो उनके ऊपर ये act apply नहीं होगा. Okay, next is अब family कौन कौन है? हमने dependents देखा था, तो now we are talking about the family कि अच्छा family pension के लिए या dependents के केस में who all are the people of the insured person, spouse उनके, husband or wife, minor, legitimate or adopted child dependent upon the insured person. उस एम्प्लॉय का कोई भी सन और डॉटर जो भी माइनर है, वो उनका अपना चाइल्ड हो सकता है, वो अडॉप्टेड चाइल्ड भी हो सकता है. Child who is wholly dependent on the earnings of the insured person and receiving education till the age of 21, or an unmarried daughter. कोई उनका once again their child completely dependent on the salary of the employee and 21 years तक उनकी भी education चल रही है, 21 years की age तक, या फिर it's a daughter and it's an unmarried daughter. Okay, child who is infirm due to any physical or mental abnormality or injury and wholly dependent on the earnings of an insured person. तो any of their children जिनको कोई physically या mentally problem है या heavy injury है, वो completely dependent हैं अपने parent के, आपके insured employee के ऊपर जो उनके parent हैं, तो इस case में the age or the married condition will not apply,
they will form part of the dependent or the family member. Dependent parents whose income does not exceed as prescribed by the central government. The government has said कि आपके जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, मान लीजिए उनकी भी कोई पेंशन आती है या कोई सैलरी है, अगर वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम है तभी वो ESI के लिए फैमिली मेम्बर्स में कंसिडर किए जाएंगे. अदरवाइज इफ दे ऑलरेडी हैव अ एक्सीडिंग इनकम तो ज़रूरत नहीं है. Unmarried and minor brother or sister wholly dependent on the insured person. You have any brother or sister who is not married and वो minor है अभी, मतलब कि वो 18 years के नहीं हुए हैं, वो आप तो and वो आपके ऊपर completely dependent है financially, तो इस केस में भी they will form part of the family of the insured person. ठीक है. फैक्ट्री क्या होता है? फैक्ट्री की बात करिए तो once again जो हमने बोला कि 10 or more people should be employed on any day of the past 12 months. हमने कहा था ना कि ऐसा नहीं कुछ किसी एक दिन पे कम हो जाएंगे तो अप्लाई नहीं होगा. Any day of the past 12 months and in which any manufacturing process is carried on with the aid of power. क्या कह रहे हैं? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काम होते रहना चाहिए उस पर यूजिंग पावर, तो 10 और मोर होना चाहिए. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 होने चाहिए. 20 और सेकेंड पॉइंट 20 or more people on any day of the past 12 months and in which any manufacturing process is carried without the aid of power. इसमें like we said earlier exemptions के अंदर कि माइंस नहीं आती हैं और रेलवे रनिंग ट्रेड्स नहीं आते हैं, तो फैक्ट्री के डेफिनेशन में वो कवर्ड नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना, हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की तो वो भी डिफाइन किया गया है कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो क्या क्या उसमें कवर होगा. इफ दे आर मेकिंग एनीथिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, finishing, packing, washing, cleaning, oiling, demolishing, treating or adapting any article. ये सारी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है कि आर्टिकल बनाने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए. और प्रोसेस टू यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवर और डिस्पोजल. आप उसको फर्दर अपनी ही फैक्ट्री में यूज करने के लिए कर रहे हैं मैन्युफैक्चर, उसको बेचने के लिए कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसको यहाँ डिलीवर करना है, इट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ. एनीथिंग. Second, pumping oil, water, sewage or any other substance. Generating, transforming or transmitting power. Electricity related काम है. Printing, photography or book binding. Constructing, reconstructing, repairing, refitting or finishing ships or vessels. Shipping से related काम कर रहे हैं कुछ भी, या preserving or